کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے فیکٹ امپیکٹ سٹوریز میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم آپ کے لیے چوتھا اور آخری پارٹ لے کر حاضر ہیں، سماعت فرمائیں۔ جب مجھے بڑے جہنم میں لایا گیا تو میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو چکا تھا۔ ہر طرف چیختے لوگ تھے جو آگ میں جھونکے جا رہے تھے۔ میں ایک جگہ پہنچا جہاں جہنم کا ایک بہت بڑا گڑھا تھا جس میں ان گنت لوگ جل رہے تھے۔ ان کی چیخیں اتنی زور سے تھیں کہ اگر وہ آوازیں دنیا میں سنی جاتی تو ہر انسان کے کانوں کے پردے پھٹ جاتے۔ جس طرح وہ آگ میں جل رہے تھے، اگر دنیا والوں کو دکھائی دیتا تو وہ دیکھتے ہی مر جاتے۔ پھر فرشتہ کہنے لگا، جہنم کے اس گڑھے میں یہ سب مسلمان ہیں۔ انہوں نے دنیا میں بہت سے اچھے کام کیے، غریبوں مسکینوں کی مدد کی، خدا کے نام کی خیراتیں کیں، لوگوں کے کام آئے، پر انہوں نے وہ نہیں کیا جو انہیں یہاں کام آتا ہے۔ انہوں نے نمازیں نہیں پڑھیں۔ خدا سب کچھ معاف کر سکتا ہے، پر جان بوجھ کر نماز نہ پڑھنے والے کو کبھی معاف نہیں فرماتا، کیونکہ نماز خدا کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کے محبوب کو دیے تحفے کی لاج نہیں رکھتا تو پھر خدا بھی اس کے بندے کی لاج نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے یہ سب عذاب میں جل رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھی۔ اسی گڑھے کے ساتھ وہاں جہنم کا چھوٹا ایک اور بھی گڑھا تھا جس میں بھی بہت سے لوگ عذاب کاٹ رہے تھے، پر ان پر تھوڑی نرمی تھی۔ میرے حیران ہو کر پوچھنے پر جواب دیا، یہ وہ سب ہیں جو کبھی کبھار نماز پڑھتے تھے۔ انہیں کم عذاب اس لیے مل رہا ہے کیونکہ انہوں نے جتنی بھی تھوڑی بہت سی نمازیں پڑھی تھیں، ان نمازوں کے صدقے اور اجر میں ان کی سزا کم ہو گئی ہے۔ پھر میں جہنم کے دوسرے گڑھے میں پہنچا جو بہت بڑا تھا۔ اس میں بھی وہی سب کچھ تھا، آگ، چیخیں، رونا، معافی مانگنا۔ اس گڑھے میں صرف عورتیں ہی تھیں جو سخت عذاب جھیل رہی تھیں۔ ان کے جسم کو آگ جلا رہی تھی اور مختلف خطرناک جیت جسم کو نوچ رہے تھے، جن کے نوچنے سے جسم کی بوٹیاں نکل رہی تھیں۔ ان کی معافیاں اور چیخ و پکار تھی، ہم پر رحم کیا جائے، ہمیں آخری بار دنیا میں واپس بھیجو۔ خدا کی قسم کبھی گھر سے نہیں نکلیں گی، کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھیں گی، ہر وقت عبادت میں رہیں گے، اپنا جسم ڈھکا چھپا کر پردے میں رکھیں گے، کبھی اپنے جسم کی نمائش نہیں کریں گے۔ یہ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے سوال پر فرشتہ کہنے لگتا ہے، یہ وہی عورتیں ہیں جو دنیا میں اس عذاب سے غافل رہیں، جو خدا اور قرآن کے حکم کو ٹھکرا کر دنیا کے مزے میں لگ گئیں۔ ان عورتوں نے اپنے جسم پر اپنی مرضی چلائی، انہوں نے اپنے جسم کو پردے میں نہیں رکھا، انہوں نے قرآن کے حکم کو چھوڑ کر نامحرم مردوں کے کندھوں سے کندھا ملانے کو ترجیح دی۔ انہوں نے دولت اور شہرت کی خاطر اپنا جسم بیچا، اپنے آپ کو نامحرم مردوں کی نظروں میں لائیں۔ انہوں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کی زندگی، پاکیزگی اور پردے کو چھوڑ کر دنیا کی مکار اور غلیظ عورتوں کو اپنا آئیڈیل سمجھا اور اپنی زندگی بھی انہوں کی طرح گزارنے لگی۔ اگر انہوں نے 4 دن کی زندگی میں دنیا کے مزے اور بے حیائی کو چھوڑ کر حضرت فاطمہ کی طرح پاکیزگی اور پردے میں گزاری ہوتی تو آج یہ عورتوں کی اس جنت کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جنت کے کسی خوبصورت سے باغ میں ان کے
बीचों बीच होती, लेकिन अब इनका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये हमेशा के लिए इस जहन्नम में डाल दी गई हैं। फिर इसी के साथ एक और छोटा गड्ढा था जिसमें भी सिर्फ औरतें थीं, लेकिन उन पर अजाब में कुछ नरमी थी। मेरे पूछने पर जवाब मिला, ये वो औरतें हैं जिन्होंने सारी जिंदगी अपने जिस्मों को नामहरम से छुपाने की कोशिश की और अपनी नजरों को नामहरम से हटाए रखा। इन पर अजाब में कमी इसीलिए है क्योंकि इनके गुनाह बहुत छोटे हैं। इनके गुनाह हैं शोहर की नाफरमानी, अपनी औलाद को दीन की तरबियत पर जोर न देना, खास अपनी बेटियों को हया और पर्दा न सिखाना जैसे गुनाह। ये अपने हिस्से की सजा काट कर आज़ाद हो जाएंगी। जहन्नम में औरतों की तादाद बहुत ज्यादा थी। सबको अजाब में देखकर दिल लरज रहा था। फिर एक जगह पहुंचे जहां पर सख्त खौफनाक अजाब दिया जा रहा था। उन्हें एक जगह खड़ा करके आग की मोटी और तलवार से बारीक कील उनकी आंखों में ठोकी जा रही थी। वो कील इनकी आंखों से होकर पिछली तरफ से निकल रही थी। उनकी आंखों में बड़ा सुराख बन रहा था। वो दर्द से चीख रहे थे। उनकी चीखें पूरे जहन्नुम में सुनी जा रही थीं। ऐसा अजाब उन्हें बार बार दिया जा रहा था। उनका जिस्म आग से जलकर भस्म हो चुका था, फिर भी वो अजाब काट रहे थे। फरिश्ता कहने लगा, ये वो बदबख्त हैं जिन्होंने अच्छे काम तो किए पर खुदा के मना करने के बावजूद ना महरम को जी भर कर और हवस से देखते रहे। इन्हें मालूम था ना महरम को देखना बड़ा गुनाह है, फिर भी ये देखते रहे। इनसे बातें की, उनसे हंसी मजाक की और आज ये चीख रहे हैं, हमें छोड़ा जाए। हमें मालूम नहीं था कि नामहरम को देखने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी, लेकिन आज इन पर कोई रहम नहीं खाया जाएगा क्योंकि दुनिया में इन्होंने खुदा के हुक्म को नहीं सुना, तो आज खुदा भी इनकी मिन्नत को नहीं सुनने वाला। जहन्नुम में मुख्तलिफ बड़े गड्ढे थे जिनमें सबको अलग अलग गुनाहों की सजा मिल रही थी। कुछ छोटे गड्ढों में, कुछ बड़े गड्ढों में अजाब काट रहे थे। फिर फरिश्ता कहने लगता है, यहाँ वो लोग भी हैं जिन्होंने दुनिया में बहुत अच्छे काम किए, नमाजें पढ़ी, कबीरा गुनाहों से बचे रहे, लेकिन झूठ बोलना, मुनाफिकत, रियाकारी, हसद, गीबत, दिल में बुराई रखना जैसे छोटे पर सख्त अजाब वाले गुनाहों से नहीं बचे। इसलिए ये इन छोटे गुनाहों की सजा काट रहे हैं और इन्हें तब तक अजाब मिलता रहेगा जितनी बार इन्होंने झूठ, रियाकारी, हसद, गीबत की होगी। इतनी ही बार इन्हें ये सजा मिलेगी। फिर इन गुनाहों से ये आज़ाद हो जाएंगे और अपने किए दूसरे गुनाहों की सजा काटेंगे। फिर एक और जगह पहुंचे जहां मर्द और औरत को एक ही सजा मिल रही थी। चारों तरफ उनके आग थी। उस आग में बड़े बड़े गोले नुमा शोले थे जिसमें वो जल रहे थे और सख्त अजाब काट रहे थे। वो आग में भी जल रहे थे। उन्हें किसी सख्त चीजों से भी मारा जा रहा था। इन पर कड़े से कड़ा अजाब था। फिर मैंने पूछा, इनका क्या गुनाह है जो इन्हें सबसे सख्त अजाब दिया जा रहा है? वो जवाब में कहने लगता है, ये वो सब हैं जिन्होंने दुनिया में अपने वालिदैन की नाफरमानी की। खुदा ने कुरान में फरमाया, अपने वालिदैन को उफ तक न कहो, और इन्होंने उनसे जोर से बात की और उन्हें बुरा भला कहा, उनसे बदतमीजी की, उनकी बेअदबी करके उनका दिल दुखाया, उनका हुक्म ना मान कर उन्हें रुलाया, उन्हों के फैसलों को ठुकरा कर अपनी मर्जी के फैसले किए। ये अपने वालिदैन की नाफरमानी की सजा दुनिया में भी काट आए हैं और यहाँ भी काटेंगे, क्योंकि वालिदैन की नाफरमानी के लिए खुदा के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी
कभी दिल से रहम की दुआ नहीं मांगी। मैं सबका अजाब देखकर खौफ में था कि न जाने मुझसे क्या होगा। बड़ा गुनहगार तो मैं हूं, मैं बेनमाजी था, झूठा था, दिल दुखाए वालिदैन का नाफरमान था, अपने मफाद का था, धोखेबाज था। मुझे खौफजदा और हैरान देखकर फरिश्ता कहने लगता है, तुम इन पर अजाब देखकर खौफजदा हो गए हो। इस पूरे जहन्नम में सिर्फ मुसलमान हैं। तुम इन पर इतना सा अजाब देखकर कांप रहे हो। इन पर जो अजाब है वो इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं जो काफरों को और गैर मुस्लिम को मिलता है। इन पर अजाब दुनिया में कोई गैर मुस्लिम देख ले तो खुदा की कसम वो मुसलमान होकर मोमिन बन जाए, फिर इन जैसा मोमिन दुनिया में कोई न होगा। मुसलमान के लिए जन्नत बहुत ही सस्ती है। बस इसके लिए इस 4 दिन की जिंदगी में दुनिया की रंगीनियों को छोड़ना होगा। हर मुश्किल वक्त में भी नमाज पढ़े, जरूरत से ज्यादा झूठ ना बोले, किसी की गीबत ना करे, सबसे अच्छा रहे, किसी के दिल में नफरत ना पाले, अपने आंखों और जिस्म की नामहरम से हिफाजत करे, वालिदैन का अदब करे, अपनी औलाद को दीन सिखाए। इन कामों से भी वो जन्नत खरीद सकता है। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगा, अब तुम अपने अजाब के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम यहां देख आए हो। सुनते ही मेरी चीख निकल गई, मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार हूं। मैंने छोटे बड़े बहुत गुनाह किए हैं। मेरे इतने गुनाह हैं कि दुनिया में भी खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगता तो शायद फिर भी माफी ना मिलती। सुनकर वो कहने लगता है, ए नादान इंसान, तुम चाहे कितने भी गुनाह करो, खुदा माफ कर देता है। अगर ना करे तो फिर दुनिया में एक ऐसी हस्ती है जो तुम्हें खुदा से माफी दिलवा सकती है। वो है आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप पर करोड़ों गुनाह करके भी खुदा की बारगाह में जाओ, सच्चे दिल से माफी मांगो और कहो, ए खुदा, तुझे तेरे महबूब का वास्ता माफ फरमा दीजिए। तुझे इस महबूब का वास्ता जिसके लिए तुमने दोनों जहान बनाए। फिर देखना खुदा माफ करेगा, क्योंकि खुदा वो दुआ कभी रद्द नहीं करता जिसमें उसको अपने महबूब का वास्ता दिया जाए। मैं पछता रहा था, गुनाह तो हो गए, काश एक बार दिल से दुआ मांग कर माफी मांगी होती तो आज इस तरह जहन्नुम की आग में ना जलाया जाता। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी के इख्तिताम के साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट इम्पैक्ट स्टोरीज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिए।